So, hello students. Today we are continuing the topic sequencing. And under sequencing, if you all remember in last lecture, we had covered 2-machine sequencing. So today we are covering 3-machine sequencing now. So let's begin with an example. So many of the steps of 3-machine sequencing would remain same as 2-machine sequencing. So let's solve this example and I will explain you each step in detail. So the question says determine the optimal sequence of job that minimizes total elapsed time for the date given below, for the jobs given below rather. Processing time on the machine is given in hours. Also find total elapsed time T and the idle time for 3 machines. So here the term is not date but for the jobs given below. So there are 7 jobs, and now if you observe row wise there are 3 machines. If you all remember in our previous lecture, we used to have multiple jobs and 2 rows like machine A and machine B, and then we used to solve it. Now we have 3 rows here, machine A, machine B and machine C. And question is not specifying anything about which machine to process first and which machine to process next and which machine to process last. So obviously the sequence would remain like A, B and C. मतलब सारे jobs जो है वो पहले A में जाएंगे, फिर B में जाएंगे, and then फिर C में जाएंगे. Okay, so now our first step here would be to identify the following. So 3-machine sequencing में सबसे पहला जो step है तुम्हारा वो है तुम्हें find out करना ये 3 चीजें, minimum of first row, maximum of second row and minimum of third row. So it is like minimum, maximum, minimum. So अगर तुम सारे jobs को A, B, C order में process कर रहे हो, so minimum of A, maximum of B, minimum of C. So minimum, maximum, minimum of A, B and C. So अगर तुम यहाँ पर observe करते हो, so first row, ये जो first row है A का, वहाँ पर सबसे minimum number क्या है? So minimum number is 3. Second row B का, वहाँ पर maximum number क्या है? So maximum number is 5. And third row machine C, जहाँ पर minimum number क्या है? सबसे minimum number is 5. So first step, I hope that is pretty much easy and clear as well. It is minimum, maximum, minimum, and in the order of A, B, C. Because हम सारे jobs को कौन सा order में process कर रहे हैं? A, B और C के order में. Now next step is to check, which condition is being satisfied out of the two. मतलब ये दोनों जो condition यहाँ पे लिखी है उसमें से कोई भी एक condition satisfy होनी चाहिए. Now what are these two conditions? The first condition says minimum of A should be greater than or equals to maximum of B. Or second condition says minimum of C should be greater than or equals to maximum of B. मतलब दोनों जो minimum तुमने find किए हैं, ये दोनों minimum में से कोई भी एक ये maximum के या तो equal होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए. Okay, so वापस मैं repeat कर रहा हूँ, minimum of A greater than equals to maximum of B. So A should be greater than or equals to this B, या फिर this minimum of C should be greater than or equals to B. मतलब वापस टू सिंप्लीफाई दिस थिंग, मिनिमम तुमने 2 मिनिमम यहाँ पर फाइंड किए स्टेप 1 में, उसमें से कोई भी एक मिनिमम मैक्सिमम नंबर से या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल्स टू होना चाहिए. ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू होगा चलेगा. तुम अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ सी जो है दैट इज 5 और मैक्सिमम ऑफ बी जो है दैट इज 5. सो दिस मिनिमम इज एबल टू बी इक्वल टू मैक्सिमम. So यहाँ पर तुम्हारा जो है वो second condition satisfy हो रहा है. So that's what I have written here. Here minimum of C is equals to maximum of B. तुम अगर condition check करोगे greater than or equal to है, so या तो बड़ा होना चाहिए या फिर वो equal to होना चाहिए. दोनों में से कोई भी एक condition चलेगा. Therefore second condition is satisfied. Now 3 machines can be converted into 2 machines. So तुमने जो step 1 और step 2 किए वो क्यों किए? So basically you are doing step 1 and 2 to convert your 3 machine problem into 2 machine problem. Now why do we need to do that? So that we will learn in the next step. So basically the moment you say 3 machines can be converted into 2 machine, तुम्हारा third step आता है introduction of 2 new machines. मतलब तुम machine A, B, C को अभी convert कर रहे हो hypothetically into 2 machine problem.
नाउ इसका मतलब है तुम्हें यहाँ पर दो नए मशीन को इंट्रोड्यूस करना है, मशीन डी एंड मशीन ई। नाउ ये जो अज्यूम कर रहे हो मशीन डी और मशीन ई, उसके बदले तुम कोई भी नाम रख सकते हो, लाइक यू कैन अज्यूम लेट मशीन एक्स एंड लेट मशीन वाई, यू कैन से लेट मशीन एम एंड लेट मशीन एन, let machine P and let machine Q. So it doesn't matter which machine you are assuming. For sake of simplicity, जो यहाँ पर alphabetical order चल रहा है उसको ही continue किया जाता है. So let machine D is equals to A plus B and machine E is equals to C plus B. मतलब अगर यहाँ पे तुम्हें explain करूँ, so basically तुम्हें जो first machine तुम introduce कर रहे हो, वो first machine में you are supposed to add this two machine A and B. ओके और जो तुम सेकेंड मशीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पर तुमको ये दोनों जो है उन दोनों मशीन को तुम्हें ऐड करना है. सो यहाँ पर तुम अगर ऑब्जर्व करोगे मशीन डी इक्वल्स टू ए प्लस बी, मिनिमम मैक्सिमम की पेयर बनानी है, मिनिमम मैक्सिमम की पेयर बनानी है, एंड मशीन ई इज इक्वल्स टू सी प्लस बी. सो सी प्लस बी इज अगेन मिनिमम मैक्सिमम की पेयर बनानी है तुम्हें. सो आई होप दैट इज क्लियर विथ एवरीवन. So step number 3 says introduction of two new machine और वहां पर मिनिमम मैक्सिमम की पेयर बनानी है, मशीन ए प्लस मशीन बी, मशीन सी प्लस मशीन बी. यहाँ पर तुम आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. The moment you do that तुम्हारा एक नया क्वेश्चन टेबल बन जाएगा यहाँ पर. So basically तुम अगर ऑब्जर्व करते हो तो जॉब में मैंने यहाँ पे कॉलम वाइज 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स एज इट इज लिखे और यहाँ पर तुम देखो मशीन ए बी सी के बदले अभी मैंने जो नए दो इंट्रोड्यूस किए मशीन डी और ई लिखे हैं. ना वे डी और ई के जो रो है उसमें नंबर्स कैसे मिलेंगे? सो नंबर्स तुम्हें कैसे मिलेंगे? इट इज गोइंग टू बी लाइक a प्लस बी 3 प्लस 4 7, देन 8 प्लस 3 11, 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 4 12 एंड 7 प्लस 3 10. एंड सिमिलरली ई मशीन कैसे मिलेगा? सो मशीन सी प्लस बी करने से तो लास्ट के जो दो रो है उनको ऐड करके यहाँ पर तुम नंबर्स लिखोगे. यहाँ पे 6 प्लस 4 10, यहाँ पर 10 है, 3 प्लस 7 10, 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 11 16, 1 प्लस 5 6, 4 प्लस 6 10 एंड 3 प्लस 12 15. नाउ एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट कैसे करना है वो तो समझा. ये स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे और एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा सो वी कैन कन्वर्ट 3 मशीन इनटू 2 मशीन. बट हियर द पॉइंट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाई डू वी नीड टू डू दैट. सो अगर तुम्हें याद है सो ऑप्टिमल सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए तुम्हारे पास दो डायरेक्शन होते हैं. लाइक एक होता है लेफ्ट टू राइट और एक होता है राइट टू लेफ्ट. यहाँ पर डी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाए तुम प्लेस करोगे और जो ई है वो तुम राइट टू लेफ्ट प्लेस करोगे, राइट. सो अगर 3 मशीन है तो तुम्हारे पास 3 डायरेक्शन नहीं है जहां से तुम जॉब्स को प्लेस कर सको. तुम्हारे पास बेसिकली सिर्फ 2 ही डायरेक्शन है लिखने के लिए. एक होता है लेफ्ट टू राइट, दूसरा होता है राइट टू लेफ्ट, एंड दैट्स व्हाई यू नीड ओनली 2 रोज टू डिसाइड द ऑप्टिमल सीक्वेंस. सो बेसिकली 3 मशीन्स के लिए यहाँ पर जब तुम ऑप्टिमल सीक्वेंस डिसाइड करने जाओगे, सीधा समझो ये क्वेश्चन के टेबल से तुम डिसाइड करने जाते हो. सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही डायरेक्शन है और यहाँ पर मशीन 3 है. सो अगर लेट्स से तुम लॉजिक फॉलो करते हो 2 मशीन सीक्वेंसिंग का, सो अगर कोई भी मिनिमम नंबर पूरे टेबल में कोई भी मिनिमम नंबर अगर लेट्स से मशीन ए पे आता है तो तुम लेफ्ट से लिखोगे, मशीन सी पे आता है तो तुम राइट से लिखोगे. बट व्हाट अबाउट मशीन बी? मशीन बी पे अगर मिनिमम होगा तो तुम कहां पर लिखोगे? लेफ्ट और राइट तो ए और सी ने ब्लॉक कर दिया है. सो the problem here is that you have 3 machines and directions are only 2, left and right. So that is the reason we need to convert 3 machine into 2 machine first. और एक बार वो 2 मशीन में कन्वर्ट हो गया then it becomes simple problem. 2 मशीन है तुम्हारे पास D और E और 2 डायरेक्शन है तुम्हारे पास left and right. So now it becomes pretty easy to find out the optimal sequence from this table. So now let's start with the optimal sequence. Now optimal sequence के लिए तुम्हारे सारे जो steps है वो 2 machine sequencing के जैसे ही है. पूरे टेबल से तुम्हें सबसे मिनिमम नंबर फाइंड करना है. So if you observe सबसे मिनिमम नंबर is 6 which is on E. So अगर वो E पे है तो तुम राइट साइड पे लिखोगे जॉब नंबर 5 को and you will cancel out this. Then next minimum number is 7. Now 7 दो जगह पर है. 7 D पे भी है and 7 E पे भी है. So जो D जो मशीन पे आ रहा है उसको हम यहाँ लेफ्ट से लिखेंगे और जो यहाँ पे जॉब 3 का जो 7 है जो E मशीन पे है उसको हम यहाँ पे राइट पे लिखेंगे 5 के पहले.
सो 1 यहाँ पर लिखा, 3 यहाँ पर लिखा और उनको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया. नेक्स्ट मिनिमम इज 9. सो 9 यहाँ पर जॉब डी पे है, सॉरी मशीन डी पे है, जॉब 4 के लिए. सो मशीन डी पे है तो हम यहाँ पे लेफ्ट से लिखेंगे उसको. सो जॉब 4 लिख दिया आफ्टर 1 एंड वी विल क्रॉस आउट फोर्थ जॉब एज वेल. द नेक्स्ट मिनिमम इज 10. नाउ जो 10 है वो 3 जगह पर आता है. जॉब 7 में मशीन डी पे आता है तो ऑब्वियसली हम 4 के बाद यहाँ पर जॉब 7 रख देंगे. और 2 और 6 जॉब में मशीन ई पे आता है. सो 2 और 6 को हम यहाँ पर राइट में लिखेंगे, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, 2 6 या 6 2. सो इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पर देखो मैंने 2 और 2 पहले लिखा राइट साइड पे और फिर 6 लिखा. तुम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर 2 आ सकता है और यहाँ पर 6 आ सकता है, तुम्हारे फाइनल आंसर को इम्पैक्ट करेगा नहीं. सो इमीडिएटली इन दोनों को कैंसिल कर दिया एंड 7 एज वी डिस्कस्ड 4 के बाजू में आएगा और वो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव कवर्ड ऑल 7 जॉब्स हियर व्हाइल डिसाइडिंग ऑप्टिमल सीक्वेंस. Now one very important thing which you need to understand is that जैसे two machine sequencing में तुम सारे statements लिखते हो optimal sequence decide करते टाइम, वैसे statements तुम्हें यहाँ पर 3 machine sequencing में नहीं लिखने हैं. The simple logic is यहाँ पर काफी सारे steps होते हैं 3 machine में and maximum marks for which this question can come is 4 marks. So 4 मार्क के लिए इनफ स्टेप्स है तुम्हारे पास. सो डू नॉट वेस्ट टाइम इन राइटिंग स्टेटमेंट व्हाइल सॉल्विंग 3 मशीन सीक्वेंसिंग. तुम्हें ये सीक्वेंसिंग डिसाइड करते टाइम पे नीचे स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ये जो सीक्वेंस है. ओके, सो इट इज लाइक 1 4 7 6 2 3 एंड 5. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर इन आउट टेबल. नाउ याद रखना इन आउट टेबल जो बनेगा वो तुम्हारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसमें से ही बनेगा. रिमेंबर गाइस, हमने सिर्फ 3 मशीन को कन्वर्ट किया था 2 मशीन में जस्ट टू डिसाइड द ऑप्टिमम सीक्वेंस. एक्चुअली तो सारे जॉब्स को मशीन ए बी सी में से ही पास होना है. मशीन डी और ई जैसे कोई भी चीज रियलिटी में है ही नहीं. मशीन डी और ई तुमने इंट्रोड्यूस किया था अजम्पशन के साथ बिकॉज यू वांटेड टू हैव 2 मशीन फॉर डायरेक्शन, बिकॉज तुम्हारे पास 2 ही डायरेक्शन थे. So जब तुम इन आउट टेबल बनाओगे the format is same jobs machine in and out. बट अब यहाँ पर जैसे तुम 2 मशीन में सिर्फ 2 ही कॉलम बनाते थे, मशीन ए मशीन बी, यहाँ पे तीनों मशीन आएंगे ए बी सी एंड वो भी वही ऑर्डर में जो ऑर्डर में जॉब में प्रोसेस हो रहे. लाइक सारे जॉब्स पहले मशीन ए में जा रहे हैं, फिर बी में और फिर सी में. तो यहाँ पर भी पहले ए मशीन की कॉलम, फिर बी मशीन की कॉलम और फिर सी मशीन की कॉलम. और यहाँ पर अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो जो हमने ऑप्टिमम सीक्वेंस डिसाइड की है प्रीवियस स्लाइड में, वही ऑप्टिमम सीक्वेंस मैंने यहाँ पर रखी है. इट इज लाइक 1 4 7. सो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं सो इट इज 1 4 7 6 2 3 5. सो 6 2 3 5. सो वही सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिखी है. राइट नाउ इफ यू ऑल रिमेम्बर, तुम्हें हमेशा जो है तुम्हारा फर्स्ट वैल्यू इन में, फर्स्ट मशीन फर्स्ट वैल्यू इन में 0 रखना है. सो आई होप यू रिमेम्बर दिस. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा. बराबर है ये. नाउ तुम्हारा जो पूरा का पूरा फोकस है वो मशीन ए के नंबर्स पे होना चाहिए. ओके, सो जस्ट pay close attention. The logic remains same as 2 machine sequencing. हमें पूरा वही लॉजिक अप्लाई करके यहाँ पर इन एंड आउट टेबल बनाना है. There is no change at all from the previous steps. So मशीन ए जॉब 1. सो मशीन ए की तुम्हारे पास ये रो है. तुम्हारा ध्यान बस यही रो पे होना चाहिए, बाकी के दो रो को तुम टेम्पररी इग्नोर करोगे. जॉब 1 में कितना है 3, so यहाँ पे 3 ऐड कर दिया. वही 3 तुम यहाँ पर नीचे लेके आओगे. जॉब 4, सो वहां पर कितना है 4, सो 4 ऐड कर दोगे. 7 को नीचे लेके आओगे. 7 यहाँ पर लिख दिया. जॉब 7 कितना है वहां पर नंबर 7, सो ऐड किया 14 नीचे कॉपी करोगे. जॉब 6, सो जॉब 6 विल बी 8, सो 14 प्लस 8 22 नीचे आ जाएगा. सो 22 यहाँ पर. जॉब 2, सो दैट इज 30 बिकॉज जॉब 2 में 8 है. देन 30 नीचे आ जाएगा. जॉब 3 में 7 है, सो 37 नीचे आ जाएगा. एंड 37 के बाद जॉब 5, सो जॉब 5 में 9 है, सो इट इज 46. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. राइट नाउ लेट्स गो फर्दर. जस्ट होल्ड ऑन गाइस. नाउ तुम्हारा पूरा जो ध्यान है वो मशीन बी पे होना चाहिए था. ओके,
सो इफ यू फोकस ऑन मशीन बी, तुम्हारा यहाँ पर पहला जो नंबर है वो तो तुम कॉपी करते हो, यहाँ पर जो मशीन ए का आउट टाइम है यहाँ पे 3, वही 3 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ इन टाइम 3 है मशीन बी के लिए। नाउ जॉब वन में क्या है, ये 4, सो 3 + 4 7। नाउ अगर तुम्हें याद है, सो हम यहाँ पर क्या डिसाइड करते हैं बेसिकली, सो वी डिसाइड या तो ये नंबर या फिर ये नंबर, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पर हम लिखते हैं, करेक्ट? that number we write here. So 7 और 7 में ऑब्वियसली यहाँ पर तो इक्वल है, तो 7 हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। नाउ 7 में अभी जॉब 4, सो जॉब 4 में क्या है, नंबर 5, सो 7 + 5 इट इज 12। नाउ 12 और 14 में बड़ा नंबर कौन सा है, सो इट इज 14, सो 14 यहाँ पर लिख दिया हमने। नाउ जॉब 7 में क्या है, 3, सो 14 + 3 17। 17 और 22, सो 17 और 22 में बड़ा नंबर क्या है, 22, सो 22 यहाँ पर लिख दिया हमने। जॉब 6, सो जॉब 6 में क्या है, 4, सो 22 + 4 26। 26 और 30 में बड़ा नंबर क्या है, सो इट इज 30, सो 30 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, सो 30 एंड देन जॉब 2, सो जॉब 2 में नंबर इज 3, सो 30 + 3 33। 33 एंड 37 में द मैक्सिमम इज 37, सो 37 यहाँ पर लिख दिया। देन जॉब 3, तो जॉब 3 में नंबर क्या है, 2, सो 39। 39 और 46 में क्या है, सो बड़ा नंबर है 46, सो 46 यहाँ पे लिखा है। जॉब 5 में द नंबर इज 1, सो यहाँ पर 1 को ऐड करके 47 लिख दिया। सो इफ यू ऑब्जर्व द रूल्स आर स्टिल द सेम। तुम्हारा फर्स्ट मशीन तुम्हें पहले कंप्लीट करना है, फिर सेकेंड मशीन स्टार्ट करना है, और सेकेंड मशीन में भी इन टाइम डिसाइड करते टाइम पे तुम्हें ये दोनों नंबर में से मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर लिखना है। Now same logic goes for machine 3 as well, no difference at all. So machine C में भी तुम्हारा जो फर्स्ट जॉब है, वहां पर जो मशीन B का जो आउट टाइम है, फर्स्ट जॉब नंबर 1 मशीन B से जब आउट होगा तब मशीन C अपना काम स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पर 7 आ जाएगा। नाउ तुम्हारा जो पूरा फोकस है वो कहाँ पर होना चाहिए, सो एब्सोल्युटली राइट, तुम्हारा जो पूरा फोकस है वो अभी होना चाहिए मशीन C के रो पे, मशीन C के रो पे। ओके, सो लेट्स बिगिन। जॉब नंबर 1 कितना है, 6, सो 7 + 6 13। अब 13 और 12 में बड़ा नंबर क्या है, सो 13 है, सो 13 तुमने यहाँ पर लिख दिया। जॉब 4, तो जॉब 4 में द नंबर इज 11, सो 13 + 11 दैट इज 24। 17 और 24 में बड़ा नंबर क्या है, सो इट इज 24, सो 24 लिख दिया। नाउ जॉब नंबर 7, जॉब नंबर 7 में द नंबर इज 12, सो 24 + 12 36। 36 और 26 में द बिगर नंबर इज 36, so 36 यहाँ पर लिख दिया हमने। जॉब नंबर 6, so जॉब नंबर 6 में इट इज 6, so 36 + 6 42। 33 और 42 में बड़ा नंबर क्या है, so इट इज 42। जॉब नंबर 2, so जॉब नंबर 2 में 7, so 42 + 7 49। 39 और 49 में यहाँ पर क्या आएगा, 49। ओके, सो 49 on job number 3, so job number 3 में 5, so 49 + 5 54। then 54 यहाँ पर कॉपी करेंगे because that is a bigger number, and job number 5 which is containing 5, so 54 + 5 59। so I hope you have understood this as well. There are no differences at all from the two machine sequencing steps. In and out table similar rules के साथ ही तुम्हें बनाना है, and there are hardly any changes, so steps are pretty easy. Once you are done with in and out table, the next step is to decide the total elapsed time, that is T, and idle time for the machine. So again the logic remains same. तुम्हारा जो total elapsed time है, that is nothing but the last number of the table which is 59 hours. अगर तुम चेक करते हो तो यहाँ पर जो हमें दिया है वो टाइम आवर्स में दिया है। ओके, सो 59 hours। then idle time for A is equals to 59 माइनस क्या करोगे, तो A के जितने भी नंबर्स दिए हैं, आई एम सो सॉरी, A के जितने भी नंबर्स दिए हैं वो सारे नंबर्स का यहाँ पर टोटल कर दोगे। So 59 minus 46 and that's how you get 13 hours. Idle time for B which is 59 minus B के जो भी नंबर्स दिए हैं वो तुम यहाँ पर ऐड करके माइनस करोगे 59 में से, and that's how you get idle time for B. And last idle time for C. So again the same logic, 59 minus C के जो सारे नंबर्स दिए हैं वो तुम यहाँ पर ऐड करके 59 में से माइनस कर दोगे, so you get idle time for C. So step, if you observe step number 3 के बाद तुम्हारे सारे जो स्टेप्स है वो टू मशीन सीक्वेंसिंग के ही है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड 3 मशीन सीक्वेंसिंग के स्टेप्स। नाउ योर कॉमन डाउट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सॉल्यूशन। सो अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया
दैट सेम एग्जांपल आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर कि तुम्हें एक्चुअली ये लिखना कैसे है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप होगा तुम्हारा आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग. तुम्हें ऐसे ही लिखना है अपने सोल्यूशन में आंसर स्टार्ट करके आइडेंटिफाइंग फॉलोइंग. ये टेबुलर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है. तुम सीधा मिनिमम ऑफ a इक्वल्स टू 3, मिनिमम मैक्सिमम ऑफ b इक्वल्स टू 5, मिनिमम ऑफ c इक्वल्स टू 5 ऐसे लिख सकते हो. ये टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग. देन सेकंड स्टेप इज चेकिंग द कंडीशन. दो कंडीशन है अगर तुम्हें याद है तो. मिनिमम जो है, ये दोनों मिनिमम में से कोई भी एक मिनिमम मैक्सिमम से या तो इक्वल होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए. सो मिनिमम ऑफ a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ b. ओके, या फिर मिनिमम ऑफ c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ b. तो यहाँ पर अगर तुम्हें याद है तो c जो है वो इक्वल्स होता है b से. तो सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड and therefore 3 machines can be converted into 2 machines. So that is the step number 2. Step number 3 is to introduce 2 new machines. और यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था तुम्हें कोई भी दो लेटर तुम यूज कर सकते हो. मशीन डी हमने यहाँ पर लिया था, मशीन डी एंड मशीन ई इक्वल्स टू. सो यहाँ पर कैसे इंट्रोड्यूस करने दो मशीन. सो डी विल बी a प्लस बी. मिनिमम मैक्सिमम की पेयर बनानी है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम. सो मिनिमम ऑफ मशीन ए प्लस मशीन बी एंड मशीन सी प्लस मशीन बी. और फिर यहाँ पर ये तुम्हारा पूरा जो क्वेश्चन है वो रीजनरेट हो जाएगा विद 2 रोज. एक बार ये हो जाए देन ऑप्टिमम सीक्वेंस डिसाइड करोगे तुम. और ये ऑप्टिमम सीक्वेंस के जो रूल है वो सेम है. डी और ई, जो मशीन में पहले जाएगा वो लेफ्ट साइड पे, जो मशीन में बाद में जाएगा वो राइट साइड पे आएगा. एंड यहाँ पर मैंने डिस्कस किया वैसे कोई भी स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है. Once you are done with this, prepare in-out table, which is again the same as 2 machine sequencing. And once you are done with it, prepare, derive the total elapsed time and idle time for the machine. So you all can just pause this video and note all the steps down and write the solution as well for the first question. Okay, so moving forward to next example. Find a sequence that minimizes the total time required in performing following jobs on 3 machines in the order ABC. So यहाँ पर जो ऑर्डर दिया वो बहुत क्लियरली लिख दिया ABC. अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है ये चीज के बारे में तो हम यही अज्यूम करते कि यहाँ पर जो रो वाइज दिया है वही ऑर्डर रहेगा. Processing time in hours are given in the following table. So basically again we are required to find out the total elapsed time and the idle time. Okay. So first step is identifying the following: minimum, maximum, minimum. Minimum of first row, maximum of second and minimum of third. अगर यहाँ पर in the order A, B, C के बदले वो लोग ने दिया होता B, A, C, तो यहाँ पर भी मैं लिखता minimum of B, maximum of A, minimum of C. Remember this guys, huh? This is very important. So in the order A, B, C है तो यहाँ पर भी A, B, C आएगा minimum, maximum, minimum में. But अगर यहाँ पर question ऐसा देता in the order B, A, C, इसका मतलब मशीन बी में सारे जॉब्स पहले जा रहे हैं, मशीन ए में बाद में एंड मशीन सी में लास्ट में. तो यहाँ पर मैं मिनिमम ऑफ बी लिखता, मैक्सिमम ऑफ ए लिखता, मिनिमम ऑफ सी लिखता. तो इट इज लाइक बी ए सी ऐसे लिखता. ओके, सो नॉनदलेस हमारे क्वेश्चन में ऑर्डर बहुत क्लियरली एबीसी दिया है तो हमने यहाँ पर भी एबीसी लिखा है. सो मिनिमम ऑफ ए अगर तुम ऑब्जर्व करते हो सो दैट इज 6, मैक्सिमम ऑफ बी that is 6 and minimum of C is 4. So यहाँ पर तुम अगर चेक करोगे सेकेंड स्टेप में you have to check 2 condition कि कोई भी एक मिनिमम या मिनिमम ऑफ A should be greater than equals to maximum of B या फिर मिनिमम ऑफ C should be greater than equals to maximum of B. मतलब कोई भी एक मिनिमम ये मैक्सिमम से या तो इक्वल होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए. So यहाँ पर तुम चेक करोगे तो मिनिमम ऑफ A is equals to maximum of B. So therefore first condition is satisfied. फर्स्ट कंडीशन मतलब ये जो पहले दो है उनका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. सो नाउ 3 मशीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन्स. नाउ काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट आएगा कि सर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो लाइक समझो यहाँ पर ये मिनिमम जो है वो 5 होता तो फिर ये 5, 6 और 4 तो कोई भी मिनिमम ये मैक्सिमम से इक्वल भी नहीं है और ग्रेटर देन भी नहीं है. सो फिर यहाँ पर लिखते हैं none of the conditions are satisfied and therefore 3 machines cannot be converted into 2 machines and therefore optimum sequence cannot be determined in such problems. So basically दोनों condition अगर satisfy नहीं हो रही है so 3 machine sequencing solve नहीं हो सकता. So don't worry, you won't be getting such questions
बेसिकली तुम्हारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो भी सारे क्वेश्चंस दिए हैं वहां पर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती ही है. ओके, बट स्टिल इन केस यू हैव डाउट्स कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो क्या करने का. सो बेसिकली देन यू आर सपोज टू राइट हियर सिंस बोथ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, three machines cannot be converted into two machines. ओके, बट दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो डेफिनेटली वी कैन कन्वर्ट इनटू टू, जो हमने यहाँ पर लिखा है. नाउ वंस वी डू दिस, स्टेप नंबर 3 इज टू डिफाइन टू न्यू मशीन्स. तो यहाँ पर मशीन डी और मशीन ई हमने डिफाइन कर दिया. डी विल बी ए प्लस बी एंड ई विल बी सी प्लस बी. ओके, सो ए बी का पेयर पहले और फिर बी एंड सी का पेयर. और इसको तुम इंटरचेंज नहीं कर, इंटरचेंज इन द सेंस तुम पहले बी प्लस सी और फिर ए प्लस बी नहीं लिख सकते हो. रिमेंबर दैट. ओके, हाँ, तुम मशीन ए प्लस मशीन बी के बदले मशीन बी प्लस मशीन ए लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर मशीन सी प्लस मशीन बी के बदले मशीन बी प्लस मशीन सी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, फर्दर इफ यू रिमेंबर मैंने तुम्हें डिस्कस किया था इन दी ऑर्डर एबीसी के बदले अगर बी ए सी दिया होता, क्या दिया होता, बी ए सी दिया होता, तो यहाँ पर भी तुम क्या लिखते, बी ए सी लिखते. सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इन दी ऑर्डर तुम्हें दिया होता लेट्स से बी देन ए एंड देन सी. सो तुम फिर यहाँ पर मिनिमम भी क्या फाइंड करते, मिनिमम ऑफ बी फाइंड करते, मैक्सिमम ऑफ ए फाइंड करते, राइट, एंड मिनिमम ऑफ सी फाइंड करते हैं, बी ए सी सेम ऑर्डर. और जब तुम दो नए मशीन डिराइव करते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन के नंबर पे फोकस मत करना है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स क्या होंगे फोकस मत करना, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट कि अगर ऑर्डर बी ए सी होता तो तुम कहाँ कहाँ क्या चेंज लाते स्टेप्स में. तो मिनिमम भी वही आता, मिनिमम ऑफ बी, मैक्सिमम ऑफ ए, मिनिमम ऑफ सी, बी ए सी, यही ऑर्डर में तुम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं. सपोज एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है ये वाला एग्जांपल में, तो तुम दो जो नए मशीन है वहां पर तुम क्या लिखते हैं, D इज इक्वल टू तुम्हें अगर याद है दो मशीन जब तुम इंट्रोड्यूस करते हो तो मिनिमम मैक्सिमम की पेयर बनाते हो, तो तुम लिखते हैं मशीन बी प्लस ए और E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, A या फिर मशीन C प्लस A. सो चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो. सो बेसिकली तुम फर्स्ट जो मशीन है, फर्स्ट मशीन, उसमें इन दोनों की पेयर बनाओगे और जो सेकेंड मशीन इंट्रोड्यूस करोगे उसमें इन दोनों की पेयर बनाओगे. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. नंदलेस हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में. एक बार हम दो मशीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देन वी हैव टू कॉपी डाउन दिस एंटायर टेबल फ्रॉम द क्वेश्चन. सो जॉब 1 से लेके 5 तक, और यहाँ पर रो वाइज एबीसी के बदले आ जाएगा डी एंड डी. So D कैसे बन रहा है, A plus B करके. So if you all can observe 8 plus 5 13, 10 plus 6 16, 6 plus 2 8, 7 plus 3 10 and 11 plus 4 15. और E कैसे आ रहा है, B plus C. So it is 9 15 10 9 and 9. The next step is to decide the optimal sequence. So optimal sequence में अगर तुम्हें याद है तो D सारे जॉब्स जो है वो ए बी में पहले जाएंगे, राइट. सो इट्स लाइक डी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ई इज द सेकंड प्रायोरिटी. सो डी को लेफ्ट से लिखेंगे, ई को हम राइट से लिखेंगे. ओके, सो डी और ई, ये याद रखना, ये जो तुमने टू मशीन टेबल बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए काम आता है. ओके, तुम इन आउट टेबल में ये डी और ई का कोई यूज नहीं करते. सो dn यहाँ पर सबसे मिनिमम नंबर क्या है, सो सबसे मिनिमम नंबर इज 8 विच इज ऑन मशीन डी. सो 3 हम यहाँ पर लेफ्ट साइड से लिखेंगे और उसको क्रॉस आउट कर देंगे. द नेक्स्ट मिनिमम इज 9 विच इज ऑन 3 जॉब्स 1 4 एंड 5, और सारे के सारे ई पे है. तो 1 4 5 हम राइट से लिखेंगे इन एनी ऑर्डर, लाइक 1 पहले 4 एंड देन 5 1 4 5, और ये तीनों को तुम कोई भी ऑर्डर में लिखो यहाँ पर तो तुम्हारे फाइनल आंसर पे डिफरेंस आएगा नहीं. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल. तो 1 4 5 को यहाँ पर हम क्रॉस आउट कर देंगे. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन जॉब एंड वन प्लेस, सो 2 को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे. So this is of optimal sequences decide. Once you decide the optimal sequence, we prepare the in-out table. So in-out table में again to start again 3 2 5 4 1. So तुम्हारे यहाँ पे sequence भी आएगी 3 2 5 4 1, बराबर है. और तीन मशीन है तुम्हारे पास, मशीन A B and C. So remember you have to write original machines from the question. Machine A B and C, in out in out in out.
नाउ तुम्हारा जो पूरा फोकस है वो ये रो पे होना चाहिए, मशीन ए पे, स्टार्टिंग विद 0. जॉब 3, सो कितना है 6, सो 0 + 6 6 6 यहाँ पर कॉपी. जॉब 2 10, तो 16 6 + 10 16 16 यहाँ पर. जॉब 5 11, सो 27 27 यहाँ पर. जॉब 4, सो 27 + 7, सो जॉब 4 में 7 है, सो 27 + 7 34 34 यहाँ पर. 34 एंड जॉब 1 में कितना है 8, so 34 + 8 42. So I hope you have understood the first machine, correct? Now तुम्हारा पूरा जो ध्यान है वो कहाँ पर होना चाहिए, मशीन बी पे, मशीन बी के रो पे ध्यान दे दो. So 6 यहाँ पर कॉपी कर लिया. Now जॉब 3, so जॉब 3 में क्या है 2, यहाँ पर देखो 2. Now मैं यहाँ पे बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, you have to be very alert and focused while deciding the numbers. Guys, थोड़ा भी एक भी रो ऊपर नीचे कर दिया तो तुम्हारा पूरा आगे का टेबल राउंड जाएगा. So प्लीज बी फोकस्ड इनफ कि तुम टेबल से कौन सी रो में से कौन से जॉब के लिए नंबर पिक कर रहे हो. ओके, सो यहाँ पर 6 है, तुम्हें अभी क्या चाहिए, मशीन बी पे ही तुम्हारा. तो तुम्हारा ध्यान हमेशा जब तुम ये पूरा मशीन बी का कर रहे हो तो पूरा ध्यान यही रो पे होना चाहिए. और अभी जॉब 3, सो जॉब 3 में क्या है 2, सो 6 + 2 8. 8 और 16 में बड़ा नंबर कौन सा है 16, तो 16 कॉपी कर लिया यहाँ पर. अब कौन सा जॉब रेफर करना है 2, सो जॉब 2 और सेकेंड रो में ध्यान देना है, तो 6, तो 16 + 6 22. 27 और 22 में बड़ा नंबर क्या है 27, सो 27 यहाँ पर आ जाएगा. जॉब 5, सो जॉब 5 में इट इज 4, सो 31. 31 और 34 में बड़ा नंबर इज 34, तो 34 यहाँ पर आ गया. जॉब 4 3, सो जॉब 4 में नंबर इज 3, सो 34 + 3 37. 37 और 42 में बड़ा नंबर इज 42, तो 42 यहाँ पर आ गया. एंड देन जॉब 1 में इट इज 5, सो 47. सिमिलरली 8 यहाँ पर कॉपी कर देंगे. मशीन सी, अभी मशीन सी मतलब थर्ड रो पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए. 8 एंड जॉब 3, सो जॉब 3 में नंबर इज 8, सो 8 + 8 16. 16 और 22 में बड़ा नंबर क्या है 22, सो 22 यहाँ पर लिख दिया हमने, करेक्ट. नाउ जॉब 2, सो जॉब 2 में नंबर क्या है 9, सो 22 + 9 विच इज 31. 31 और 31, सो 31 हमने यहाँ पर लिख दिया. कौन सा जॉब है अभी 5, सो 5 में क्या है जो मशीन सी में 5, सो 31 + 5 36. 36 और 37 में नंबर क्या है 37. 37 यहाँ पर लिख दिया. कौन सा जॉब है अभी 4, सो फोर्थ जॉब में मशीन सी 6, सो 37 + 6 47, सॉरी 37 + 6 43. 43 और 47 में बड़ा नंबर इज 47, सो 47 यहाँ पर लिखा. एंड जॉब 1 विच इज 4, सो 50. So guys, I'm trying to cover all the numbers here so that when you listen it carefully and follow the cursor, you can definitely understand each and every step कहाँ से number कौन से आ रहे हैं. And once you are done with in and out table, the last step is to decide the total elapsed time. So you remember like total elapsed time क्या है, तो तुम्हारा table का last number which is 51 hours. पूरी process को खत्म होने में 51 hours लगे. और यहाँ पर अगर तुम देखोगे time दिया है in units दिए in hours, so 51 hours. Then ideal time for A, so again 51 minus all numbers of A के जितने भी numbers है यहाँ पर 8 + 10 + 6 + 7 + 11, so वो जब तुम ऐड करोगे 42 आएगा, so 51 minus 42 you get 9 hours. And similarly ideal time for B and C. Okay, so this is exactly the manner in which you are supposed to write your solution. जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तुम्हें ऐसे ही अपने बुक में भी सोल्यूशन लिखना है. So all can just pause this video again and copy down this question number 2. Let's go to question number 3 then. Now I would really like my students to solve this question third first. Try on your own guys. Pause this video here, try on your own and then we can discuss the answer. So that is always preferable because अभी ये जो particular method है उसमें as such कुछ भी नया नहीं सीखना है. Few important points which I will be discussing in example 3 and then example 4 जो तुम्हें याद ध्यान में रखना है. But apart from that, right now in example 3 at least you all can solve on your own. So I would really recommend you all to try on your own and then match the answer here. Okay, so let's start. Let me discuss the solution. Find the optimal sequence that minimizes total time required to complete the following jobs in the order ABC. The processing times are given in hours. So again यहाँ पर 7 jobs और 3 machines दी है.
तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? सो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। और एबीसी क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर दिया है एबीसी। ओके, सो ऑर्डर अगर एबीसी दिया है तो मिनिमम क्या है यहाँ पर? 5, मैक्सिमम क्या है यहाँ पर? 5 एंड मिनिमम क्या है यहाँ पर? 3। सो अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हारा ये जो मिनिमम है इट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, तो तुम्हारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। मिनिमम ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, therefore first condition is satisfied. Now 3 machines can be converted into 2 machines. The moment you decide this, step number 3 says define 2 machines. So machine D A plus B and machine E C plus B. Now all these are standard steps. एक बार ये तुम डिसाइड कर लेते हो कौन से दोनों नए मशीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो बेसिस पे तुम अपना टेबल रिक्रिएट कर लोगे। डी कैसा आएगा? ए प्लस बी करके आएगा, और ई कैसा आएगा? बी प्लस सी करके आएगा। तो इफ यू ऑल ऑब्जर्व, यहाँ पर मैंने वो टेबल रीजनरेट कर दिया है। सो इट इज लाइक 6 + 4 10, 7 + 3 10, 5 + 2 7, 11 + 5 16, 6 + 1 7, 12 and 15, and similarly E row. So once you are done with this, I am hoping तुमने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया और तुम्हारे सारे नंबर्स मैच हो रहे हैं। बेस्ड ऑन दिस टेबल तुम ऑप्टिमल सीक्वेंस डिसाइड करोगे, B फ्रॉम लेफ्ट एंड E फ्रॉम राइट। सो पूरे टेबल में सबसे मिनिमम नंबर क्या है? सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे मिनिमम नंबर लुक्स लाइक 7, राइट? तो 7 जो है तुम्हारा 3 और 5 D पे है, तो 3 और 5 यहाँ पर लिख दिया। तुम इंटरचेंज भी कर सकते थे, 5 पहले 3 बाद में। ओके, और 7 कहीं पे है तो 7 ये रहा। जॉब 1 पे E पे, सो जॉब 1 को यहाँ पर लिख दिया राइट साइड से, एंड तीनों को क्रॉस आउट कर दिया। देन नेक्स्ट मिनिमम नंबर लुक्स लाइक 9। जो 9 है वो यहाँ पर E पे है, सो हम यहाँ पे राइट साइड से लिख देंगे जॉब 4 को और उसको कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट मिनिमम इज 10। सो 10 दो जगह पर है, ये रहा 10 यहाँ पर मशीन D पे, सो जॉब 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर जॉब 7 पे भी है मशीन E पे, सो जॉब 7 को हम राइट से लिख देंगे और उसको दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन जॉब एंड वन प्लेस, सो उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो ऑप्टिमल सीक्वेंस, अगेन आई एम होपिंग ये भी तुम्हारा मैच हो रहा है। लेट्स गो टू प्रिपेयर द इन आउट टेबल। सो इन आउट टेबल में जॉब जो है वो तुम्हारे ऑप्टिमम सीक्वेंस के हिसाब से तुम यहाँ पर अरेंज कर दोगे, 3 5 2 6 7 4 and 1, और मशीन आएंगे A B and C। A B C दैट इज इन द ऑर्डर A B C, तो A पहले, B बाद में, C बाद में। तो जैसे मैंने पहले के एग्जांपल में भी डिस्कस किया था, अगर यहाँ पर B A C होता तो कहाँ कहाँ पर चेंज आता तुम्हारा? सो ये मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम, मिनिमम, यहाँ पर B A C ये ऑर्डर में आता। D और E में भी तुम्हारा क्या आता? तो B A C, तो B plus A and C plus A। ओके, और यहाँ पर भी जो प्रोसेसिंग है वो तुम्हारा पहले कौन से मशीन में हो रहा है? B में, फिर A में, और फिर C में। आई एम रिपीटिंग, अगर क्वेश्चन लिख के देता इन दी ऑर्डर BAC तो ही ये सब चेंज आते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल। सो यहाँ पर तुम्हारे जो है मशीन ABC, इन आउट इन आउट इन आउट, और ये सारे जॉब्स दिए हैं। सो यू ऑल कैन जस्ट नाउ पॉज द वीडियो एंड try to match this numbers from this original question। ये क्वेश्चन के नंबर्स है और यहाँ से हमने मैप किया है। I am not repeating this because it is the same step as earlier examples. So you all can just pause the video and match for your own self कि numbers match हो रहे हैं कि नहीं। And once you are done with in out table, तुम last step क्या करोगे? elapsed time find करोगे, which is 61, and ideal time for A, B and C, which is like 61 minus total of all these numbers A, then B के लिए 61 minus total of all B's number, and C के लिए 61 minus all C's number। यहाँ पे तुम्हें प्लस प्लस करके जैसे हम हर बार लिखते हैं वैसे लिख के दिखाना है। Okay, so I'm not discussing in and out table and elapsed time in detail, as those steps are similar to what we have been discussing since last 2 lectures. So you can just pause the video and match answers for your own self. Okay, now let's move to question number 4. Now question number 4 is a bit interesting. A foreman wants to process 4 different jobs on 3 machines: shaping machine, drilling machine and tapping machine. The sequence of operation being shaping, drilling and tapping. Decide the optimal sequence for the 4 jobs to minimize the total elapsed time. Also find total elapsed time and idle time for every machine. तुम यहाँ पर अभी ऑब्जर्व करोगे तो ये जो टेबल दिया है, सबसे पहले तो ये टेबल पूरा उल्टा दिया है।
they have given this table in reverse. तुम अगर previous question observe करते हो तो look at the way they give, like job देते हैं यहाँ पर column headers में, और machine ऐसे row wise होते हैं. In this question अगर तुम observe करते हो तो job वो लोग ने यहाँ पर row wise दी और जो तुम्हारे 3 machine है वो तुम्हें यहाँ पर column wise दी है. Now my suggestion is to convert this table first of all into the normal way, you know, in which we are habituated to see that. So basically यहाँ पर जो table दिया है, that's, you know, reverse than rest of the question. Hence first we would recreate the table as follows and that would become our question. So basically तुम अगर देखोगे तो मैंने यही question पूरा copy कर लिया यहाँ पर, jobs 1 2 3 4, jobs 1 2 3 4, and shaping drilling tapping को मैंने यहाँ पर रो वाइज कन्वर्ट कर दिया. सो बेसिकली 13 18 8 23 यहाँ पर रो में दिख रहा है, 13 18 8 23 शेपिंग के लिए. ड्रिलिंग के 3866 रो वाइज दिख रहे हैं. टैपिंग के 18 4 13 8 यहाँ पर रो वाइज दिख रहे हैं. नाउ दिस इज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय एंड. बोर्ड्स में ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेथड भी नहीं है, मतलब जहाँ पर बेसिकली यू आर सपोज टू कन्वर्ट दिस. तुम क्वेश्चन ने यहाँ पे जो टेबल दिया उससे भी पूरा सॉल्व कर सकते हो, बट my suggestion is that we are habituated to see, you know, machines row wise and jobs in column wise. So the first thing ideally which you should do is to convert this into the format which we would like to have. So ये जो मैंने लिखा है स्टेप, ये कंपलसरी नहीं है, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम ये फॉलो करो. जब भी क्वेश्चन ये मशीन्स या फिर जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे तुम्हें ऐसे कॉलम वाइज दे दो, उसको कन्वर्ट करके रो में कन्वर्ट कर दो. Okay, now the standard steps. Identify the following. So क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम. तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस के नाम दिए वही ब्रैकेट में लिखना है. मिनिमम ऑफ शेपिंग, मैक्सिमम ऑफ ड्रिलिंग, मिनिमम ऑफ टैपिंग. ओके, सो यहाँ पर मिनिमम ऑफ शेपिंग इज 8, मैक्सिमम ऑफ ड्रिलिंग इज 8 एंड मिनिमम ऑफ टैपिंग इज 4. तो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन मीट हो रहा है. मिनिमम ऑफ शेपिंग इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ड्रिलिंग, therefore फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ओके, सपोज शेपिंग का मिनिमम 9 होता, एग्जांपल दे रहा हूँ, शेपिंग का मिनिमम 9 होता तो भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता. यहाँ पर तुम लिखते मिनिमम ऑफ शेपिंग इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ ड्रिलिंग एंड देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, बिकॉज़ इफ यू ऑल रिमेंबर द कंडीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. ओके, सो नाउ 3 मशीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन्स. सो ये जो 3 मशीन है उसको तुम 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड एज आई सेड अर्लियर, तुम कोई भी 2 मशीन के नाम अज्यूम कर सकते हो. यहाँ पर सिंस हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है तो तुम कोई भी 2 अल्फाबेट ले सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है. सो लेट मशीन x इज इक्वल टू शेपिंग प्लस ड्रिलिंग, मिनिमम मैक्सिमम की पैर बनानी है, एंड मशीन y इक्वल टू टैपिंग प्लस ड्रिलिंग. ओके, नाउ वंस यू डू दैट यू हैव टू रीजनरेट द क्वेश्चन फ्रॉम द टेबल. सो तुम्हारा मशीन x जो है वो कैसे आ रहा है? शेपिंग प्लस ड्रिलिंग करके. सो 13 प्लस 3 16, 18 प्लस 8 26, 8 plus 6 14 and 23 plus 6 29. And machine y कैसे आ रहा है? So drilling plus tapping करके. So 3 plus 18 21, 8 plus 4 12, 6 plus 13 19 and 6 plus 8 14. So ये तुम्हारा आ गया 2 machine table. Now once you decide that optimal sequence, now optimal sequence के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर रीजनरेट किया है प्रीवियस स्लाइड से जो तुमने 2 मशीन का टेबल बनाया था वो. So 16 20 ये सारे नंबर्स जो है वो प्रीवियस स्लाइड से आ रहे हैं. 16 21, if you observe 16 21, 26 12, 14 19, 26 12, 14 19 and 29 14. So 29 14. So वही टेबल मैंने यहाँ पर सिर्फ रीजनरेट किया है so that optimal sequence डिसाइड करना हमारे लिए इजी हो जाए. So x अगर होगा तो लेफ्ट साइड से, y अगर होगा तो राइट साइड से लिखेंगे. सबसे मिनिमम नंबर क्या है? सो मिनिमम नंबर इज 12 व्हिच इज ऑन y. सो हम 2 यहाँ पर राइट साइड पे लिखेंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे. देन नेक्स्ट मिनिमम इज 14. सो 14 जो है वो 2 जगह पर है. x पे जो है वो यहाँ पर लिखेंगे 3, जॉब 3 हम लेफ्ट में लिखेंगे और जो यहाँ पे y पे है जॉब 4 वो हम राइट से लिखेंगे. तो 3 and 4 उसको भी कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 जॉब एंड 1 प्लेस. सो वी विल रिप्लेस दैट हियर. So we're done with the optimal sequence as well. Now again मैंने यहाँ पर ये जो टेबल है तुम्हारा, ये क्वेश्चन का टेबल है शेपिंग ड्रिलिंग एंड टैपिंग का. जो क्वेश्चन है नंबर्स दिए वो है, ये रीजनरेट किया है. तुम्हें ये दोनों टेबल जो यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो आंसर में कॉपी करने की जरूरत है. दिस इज जस्ट फॉर आवर इजी रेफरेंस. प्रीवियस स्लाइड में चले गए थे टेबल तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उनको रीजनरेट किया है. हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन एंड आउट टेबल.
सो इन एंड आउट टेबल में हमें क्या करना है, so यहाँ पे 3142, so 3142 लिख लिया. एंड इफ यू रिमेम्बर द सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में मशीन्स में जा रहे हैं, सो पहले शेपिंग, देन ड्रिलिंग एंड देन टैपिंग. तो शेपिंग, ड्रिलिंग एंड टैपिंग हो रहा है. एंड यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो. ये सारे नंबर्स कैसा है, यू ऑल कैन जस्ट सी. आई विल एक्सप्लेन यू वंस इफ यू वांट. सबसे पहले 0, शेपिंग में 3. सो शेपिंग पे, फर्स्ट रो पे ध्यान देना. शेपिंग में जॉब 3 कितना है, 8. सो 8 यहाँ पर, 8 नीचे कॉपी. जॉब 1, सो 13, 8 प्लस 13 21, 21 नीचे कॉपी. फिर 4, जॉब 4 में 23, सो 21 प्लस 23, सो दैट गिव्स यू 44. सो 44 यहाँ पर नीचे कॉपी, बराबर है. नाउ जॉब 2, सो जॉब 2 में 18, सो 44 प्लस 18 62. नाउ 8 जो फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा. नाउ ड्रिलिंग, सो ड्रिलिंग मतलब सेकंड रो पे फोकस रखना पूरा. 8 एंड जॉब 3 पे, सो 6, सो 8 प्लस 6 14. अब 14 और 21 में बड़ा क्या है, मैक्सिमम क्या है, 21, सो 21 लिखा. नाउ जॉब 1 में क्या है, 3, तो 21 प्लस 3 24. देन नेक्स्ट 24 एंड 44 में बड़ा नंबर 44. जॉब 4, सो 6, सो 50 एंड देन 62, सो 62 और जॉब 2, सो जॉब 2 में 8, सो 70. नाउ टैपिंग, सो टैपिंग के भी नंबर सेम. फर्स्ट 14 का 14 यहाँ पे लिखा. देन जॉब 3 में टैपिंग 13, सो 27 नीचे. जॉब 1 में कितना है, 18, सो 27 प्लस 18 45. 50 में यहाँ पर आ जाएगा 50. जॉब 4 में इट इज 8, सो 58 प्लस 58 और 70 में बड़ा नंबर 70, सो 70 यहाँ पर. एंड जॉब 2 में इट इज 4, सो 74. सो टोटल elapsed टाइम इज 74 मिनट्स. यहाँ पर अगर तुम क्वेश्चन रेफर करोगे, जो टाइम दिया था वो सब मिनट्स में दिया. सो 74 मिनट्स. आइडल टाइम फॉर शेपिंग इज 74 माइनस शेपिंग के जो सारे नंबर्स है उसका टोटल. सेम ड्रिलिंग एंड टैपिंग. सो this is where we end 3 machine sequencing as well, and with this we actually end our entire first topic of maths 2, assignment and sequencing. Don't forget to check out the description guys. वहाँ पर मैंने कुछ questions तुम्हारे practice के लिए PDF save किया है. So please practice those questions immediately after this video lecture, because जैसे ही तुम्हारा वो practice करके खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारा doubt session ये video का और वो PDF questions का साथ में ले लूँगा. Okay, so don't forget to download the PDF and immediately solve it. Okay, thank you everyone.